So gravitation में first we have to discuss the gravitational force which is given by the Newton's law of gravitation. Then we will discuss the gravitational field. Then we will discuss the gravitational potential. Then we will discuss the gravitational potential energy. And then we will see the Kepler's laws and then some concepts about the escape velocity and the orbital velocity. So there are a lot of things to be covered today. So let us begin. First, let's study about the Newton's laws of gravitation. So what was the formula that Newton gave about the gravitational force? So if there are two objects, one of mass m1, the other of mass m2, and r is the distance between their centers, then the gravitational force will be attractive force. So it will act on the second mass, it will act towards the first mass, and on the first mass it will act towards the second mass, and its value will be F is equal to capital G m1 m2 by r square. So this will be the same for both the objects. The first object will pull the second object with this force F12, and the second object will pull the first object with the same force F21 but in the opposite direction. Okay. Now this G is a universal constant and its value is given by 6.67 into 10 to the power negative 11. Even if you go to outer space, even if you go to other planets, even if you go inside the black hole, the value of capital G will not change. Okay. Now, if we compare this force with the usual force of gravity, which we write by m1g, then we can get the value of small g. So if the first mass is, let's say, the sun, and the second mass is the earth, then this will be equal to m2g because we are calculating the weight of a body on earth. So from this we can calculate the value of small g, which is called the gravitational constant. So capital G is the gravitational constant, small g is the acceleration due to gravity, and from the above formula we can get the value of small g to be equal to g times mass of the sun divided by the radius of the sun, distance between the sun and the earth square. So for the earth, this value turns out to be 9.8 meter per second. Then the next question, the next concept that we get is what is the value of the gravitational force as we go outside and inside the earth. Let's say this is the earth, this is the center of the earth, and this is the point which is on the surface. Okay. So we have to calculate the value of small g at three different points. The first point is on the surface, the second point is inside the earth at a distance of small d from the center, and the third point is point D at a height capital H from the surface. So you have to tell me what will be the value of small g for all the 4 points. You have to tell the answer in terms of capital G, M and R square. At A it will be Gm by R square. सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? At the center of the earth there is no gravitational force. Okay, so center पर small g की वैल्यू 0 होगी. तो एक बार जल्दी से डेरिवेशन देख लेंगे, पर उससे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं. तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्राफ बनाएं या स्मॉल जी का ग्राफ बनाएं, स्मॉल जी वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर है रेडियस और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो एट पॉइंट सी स्मॉल जी की वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी पॉइंट ए पर, और यहाँ तक लीनियरली इंक्रीज होगा स्मॉल जी. उसके बाद small g will reduce inversely proportional to the square of r.
and at infinity the value of small g will become 0. तो यहाँ हम स्मॉल g लिख रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं. सो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज स्मॉल g और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास से रिलेटेड होते हैं, बाकी प्रोपोर्शनैलिटी सेम रहेगा. ठीक, तो अगर हम इसको स्मॉल g कंसिडर करते हैं, देन जो लीनियर इक्वेशन है उसका उसका लाइन ऑफ उसके लीनियर लाइन का इक्वेशन हमारा इस वाले फॉर्मूला से आ जाएगा. एंड जो ये इनवर्स स्क्वायर वाला पोर्शन है, इस कर्व का इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा. बट ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है ये सिर्फ छोटी हाइट्स के लिए वैलिड है. तो ये जो स्टार्टिंग में जब h छोटा होता है तो ये कर्व को हम लीनियर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, इसीलिए ये 1 माइनस टू एच बाई आर वाला फॉर्मूला आ रहा है. बट अगर काफ़ी बड़ी हाइट हो जाएगी देन स्मॉल जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते. इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न डेरिवेशन से सीखेंगे. ओके, तो अब हम सबका डेरिवेशन एक एक करके से देखते हैं. ए पॉइंट का तो हमने डेरिवेशन देख लिया. ए पॉइंट पर फोर्स होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल टू मास टाइम्स स्मॉल जी. तो मास कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल जी की वैल्यू आएगी जी एम बाई आर स्क्वायर. अब हम इसको दूसरे पॉइंट्स के लिए देखते हैं. लेट्स से दिस इज द अर्थ. Let's calculate the gravitational force at a point D, which is at a distance x from the center of the earth. So the force of gravity will be given by g times mass of the sun times mass of the earth divided by x square. Now this can be written as g times mass of the sun divided by r square times r square by x square times mass of the earth. राइट, तो हमने r square से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया वेयर r is the radius of the earth. Now this can be written as small g, since small g is equal to g times mass of sun by r square times r square by r plus h whole square times mass of the earth. इसमें हमने जो x डिस्टेंस था सेंटर से उसको रेडियस प्लस हाइट के इक्वल कर दिया. अब इसमें हम मास ऑफ द अर्थ टाइम्स g को जो सरफेस पर फोर्स है उसके इक्वल लिख देंगे, बिकॉज दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब इस इक्वेशन को हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो ये बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस h over r whole square. This will be equal to force at the surface times 1 plus h by r to the power minus 2. अब ये हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हैं. हमें पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन टाइम्स एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन का. तो हम ये वाला फॉर्मूला इस वाले टर्म में लगाएंगे तो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू एफ एस टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर प्लस जो बाकी वाले टर्म्स होंगे उसमें हम स्मॉल हाइट के लिए निग्लेक्ट कर देंगे. तो अगर h, if h is very very small than r, then we can say the force at point D is equal to the force at surface times 1 minus 2h by r. तो ये डेरिवेशन दोबारा से देखते हैं. पहले हम D पॉइंट पर फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे. उसमें से हम x स्क्वायर को
आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक्स की जगह आर प्लस एच पुट करेंगे और फिर 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करके सिर्फ लीनियर टर्म को रखेंगे, उसके आगे वाले सारे टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज एच इज वेरी स्मॉल। तो डी पॉइंट पर हमारा फोर्स आ गया। तो सिमिलरली अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है डी पर, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल जी टाइम्स 1 माइनस 2 एच बाई आर। दोनों तरफ से मास से डिवाइड कर देंगे। अब दूसरे वाला देखते हैं जो इनसाइड द अर्थ वाला फॉर्मूला है। अगर हम इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि ए पॉइंट पर सिर्फ जो शेल के इनसाइड वाली बॉडी है सिर्फ इतने मास का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि जो बाहर वाला बॉडी है दैट इज एक्टिंग लाइक अ हॉलो स्फेयर एंड हॉलो स्फेयर के इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। तो इस वाले पोर्शन की वजह से ए पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ए विच इज एट द डेप्थ ऑफ डी फ्रॉम द सरफेस, तो सेंटर से डिस्टेंस हो गया आर माइनस डी। तो इफेक्टिवली ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाना चाहिए एफ एट ए इज इक्वल टू जी टाइम्स मास ऑफ सन टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। बट इसमें भी एक चीज देखनी है हमें कि अब हम मास ऑफ अर्थ नहीं लिखेंगे, अब हम जो छोटे वाला स्फेयर है आर माइनस डी रेडियस का सिर्फ उसका मास लेंगे। तो इसका मतलब हमें मास ऑफ अर्थ को आर माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ छोटे वाले स्फेयर का मास लेना है। तो दिस बिकम्स इक्वल टू g टाइम्स मास ऑफ सन टाइम्स मास ऑफ अर्थ टाइम्स r माइनस टी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब एक r को इधर लिख लेंगे, दूसरे r स्क्वायर को इधर लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू द फोर्स एट द सरफेस टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं यूज करा, तो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। बट जो इससे पहले वाला था हाइट एच पर 1 माइनस 2 एच बाई आर, उसमें हमने एक्सपेंशन यूज करके अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, तो वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। तो सेंटर पर डेप्थ आर के इक्वल हो जाएगी, तो सेंटर पर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है तो थीटा लैटिट्यूड पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो पॉइंट ए पर स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ए पॉइंट पर स्मॉल जी जी प्राइम के इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका भी डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन होगा कोरियोलिस फोर्स से। अब क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सो जो पॉइंट ए है वो एक छोटा सा सर्कल काट रहा होगा आर कॉस थीटा रेडियस का। इस पिंक सर्कल का रेडियस होगा आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब पॉइंट ए पर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में जाएं तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के ओपोज करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा, एंड वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ अर्थ टाइम्स ओमेगा स्क्वायर
r cos थीटा। तो अब हम पॉइंट ए पर नेट एक्सेलरेशन का या नेट फोर्स का डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ mg, और दूसरा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो अगर हम सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालें तो हमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका सेंटर डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट लेके mg में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय अनदर cos थीटा, क्योंकि हम उसका कंपोनेंट ले रहे हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। Therefore, the effective force acting towards the center of the earth is mass times g minus omega square r cos square theta, which is equal to mass times the g prime. Therefore, g prime is equal to g minus omega square r cos square theta. तो हमने क्या करा, पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंटर की तरफ कंपोनेंट लिया। तो स्मॉल जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट की वजह से। अब एक और वजह से भी स्मॉल जी चेंज होता है, क्योंकि सेंटर पर रेडियस सबसे ज्यादा होता है। अर्थ एक जियोइड होता है तो उसका रेडियस इक्वेटर के अलोंग ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं रेडियस कम होता रहता है। तो उस वजह से भी स्मॉल जी कम होता है। बट अभी हम वो वाले इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस रोटेशनल इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तो रोटेशन की वजह से चेंज होगा, और दूसरा क्योंकि रेडियस उसका चेंज हो रहा है उस वजह से भी चेंज होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल और फोर्स को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या होता था? F इज इक्वल टू नेगेटिव डी यू बाई डी एक्स। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारा नेगेटिव जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू? So gravitational potential will be negative g m1 m2 by r. ओके, सो इसमें एक और चीज है, ये जो हमने स्मॉल यू निकाला है ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि एफ डॉट डी एक्स वर्क डन होता था, और वर्क डन का यूनिट्स एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये जो हमने निकाला है u इस इक्वेशन में, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी नॉट द पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल जिसको हम v से डिनोट करते हैं, दैट विल बिकम इक्वल टू नेगेटिव जी m1 बाय r। पोटेंशियल एनर्जी में दो मास आएंगे, पोटेंशियल में सिर्फ सन का मास आएगा। तो अगर हम अर्थ सन सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो सन सेंटर पर है और अर्थ उसका ऑर्बिट कर रही है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा
g times mass of sun times mass of earth divided by r square. पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटी की स्मॉल जी एम एस डिवाइडेड बाय आर विद अ नेगेटिव साइन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा नेगेटिव जी टाइम्स मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर। U है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसमें एक और टर्म होता है जो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे। सो एफ जी अपॉन मास ऑफ अर्थ विच इज नेगेटिव जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चार अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। पहला है फोर्स, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं और कौन सी क्वांटिटी स्केलर हैं? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेक्टर है और फील्ड भी वेक्टर है। जी। तो जैसे हमने अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, अब हम सेम चीज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। तो पीछे वाले एग्जाम्पल में जाते हैं। We have to calculate the gravitational potential at points C, B, A and D. फील्ड के लिए तो बस फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, तो फील्ड का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा। जो रेड वाला ग्राफ है उसमें बस एक कांस्टेंट से डिवाइड करें। पोटेंशियल क्या होगा? okay. तो ये था हमारा अर्थ, ये था हमारा सेंटर, ये वाला पॉइंट है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस, और ये है A और ये है B। तो इमेजिन करो एक पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी पर। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास ला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे उसका पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, एंड कितना चेंज होगा दैट विल डिपेंड ऑन द इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो वी विल गेट f dx is equal to minus du, and then we will integrate it. अब x जब इन्फिनिटी था तब पोटेंशियल हमारा जीरो था, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो होगा। तो लिमिट्स x की जब इन्फिनिटी होगी u की लिमिट जीरो होगी। अब x की लिमिट जब h प्लस आर लेते हैं, मानते हैं ये h है, तो जब लिमिट h प्लस आर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यू बी होगा। तो हमें यू बी निकालना है, तो उसके लिए हम f को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव जी एम सन एम अर्थ बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स से, एंड वी विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू h प्लस आर। दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव डी यू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू यू बी। तो कैलकुलेट करो b पर कितना u आएगा।
तो इसका मतलब हमारा पॉइंट बी पर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी U at B is equal to negative G M S M E divided by H plus R। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो एम ई से डिवाइड कर देंगे, तो नेगेटिव जी एम एस बाई एच प्लस आर। अगर हमें सरफेस पर निकालना होगा पोटेंशियल, तो एच प्लस आर की जगह एच कर देंगे और यू बी की जगह यू एट सरफेस कर देंगे। तो सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस यू एट सरफेस आ जाएगा नेगेटिव जी एम एस एम ई अपॉन आर। तो ये हमारा सरफेस पर भी निकल गया। अब हमें एक पॉइंट जो कि सरफेस से भी अंदर है उस पर निकालना है, पॉइंट बी पर निकालना है विच इज एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we will write the equation again, f is equal to negative du by dx, therefore the integral of f dx from infinity to d should be equal to integral of negative du from 0 to u at point p। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी, जब हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी से सरफेस तक फोर्स तो हमारा नेगेटिव जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, पर जैसे जैसे हम सरफेस के अंदर जाएंगे हमारे ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये 1 - d/r से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर एफ डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रल होगा सरफेस आर से आर माइनस डी तक, अगेन एफ डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to ub ऑफ नेगेटिव डी यू। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में हम फोर्स लिखेंगे नेगेटिव जी एम एस एम ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और सेकेंड वाले इंटीग्रल में हम फोर्स लिखेंगे नेगेटिव जी एम एस एम ई डिवाइडेड बाय, जब हम अंदर जा रहे हैं तो फोर्स का इक्वेशन चेंज हो रहा है, फोर्स का इक्वेशन चेंज हो रहा है तो जो इंटीग्रल के अंदर फोर्स है वो भी चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स 1 - x बाय आर। ओके, ये ऐसे करा क्योंकि हमें पता है कि जब जब हम इस वाले पोर्शन में हैं तब फोर्स का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू एम जी टाइम्स 1 - d/r। ये अभी हमने ऊपर देखा था। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू नेगेटिव जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स 1 - d/r। तो इनसाइड अंदर वाले इंटीग्रल के लिए फोर्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव जी एम एस एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स 1 - x/r। तो x की जगह हम लिख देंगे r माइनस डी। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, बट यहाँ पर हमें d लिखना चाहिए, सो वी विल राइट x। ओके, so this will be equal to integral of negative du from 0 to ub। तो इसको जब सॉल्व करोगे वी विल गेट द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। सो इसका फाइनल आंसर याद रख लो तो बेटर है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है। फाइनल आंसर इसका आता है u at a point inside is negative g mass of sun mass of earth divided by 2r square
times 3r square minus small r square. Okay. So this is the potential energy at a radius small r from the center where small r is less than r. इसका डेरिवेशन समझ में आ गया? इंटीग्रल करेंगे जब तक सरफेस से ऊपर है तो इंटीग्रल में फोर्स सेम आएगा, नेगेटिव जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। बट जब सरफेस के अंदर आ जाएगा तो इंटीग्रल में फोर्स का अपडेटेड फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जब सरफेस पर देखते हैं तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल डालें, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस, बिकॉज सरफेस पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो चेक करो कि सेम आंसर आ रहा है जो पहले आया था। और तो चौथा पॉइंट था सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा नेगेटिव जी एम एस एम ई 3/2r। तो अब हम एक बार समराइज करते हैं इसको। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को, हमारे पास चार केसेस थे, एक सेंटर, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट एट द सरफेस और एक पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। सो एट पॉइंट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव जी एम एस एम ई बाय आर स्क्वायर, और r की जगह हम पुट कर देंगे h प्लस आर। अब इसको बाइनोमियल से सिंप्लीफाई करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम एस एम ई बाय आर स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 2h बाय आर। बट दिस इज ओनली ट्रू इफ स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस। तो अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर देखना हो देन दिस विल बी अ गुड अप्रोक्सीमेशन। बट अगर 10,000 किलोमीटर पर देखना है तो हम ये वाला एक्यूरेट आंसर लिखेंगे। अब पॉइंट एस पर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव जी एम एस एम ई बाई आर स्क्वायर, which is also equal to mass of earth times the small g. Point A पर gravitational force will be negative g ms me by r square times 1 minus d by r, where d is the depth from the surface. And point C पर gravitational force will be 0. और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो तो इन सबको मास ऑफ अर्थ से डिवाइड कर देंगे। अब हम यही सेम चीजें पोटेंशियल के लिए लिखते हैं। At point C, the potential energy will be equal to negative g mass of sun mass of earth divided by r plus h, where h is the height from the surface. At point B, which is at the surface, potential energy will be negative g ms me by r. At point A, which is inside the sphere, potential energy will be negative g mass of sun mass of earth divided by r cube times 3r square minus r square by 2। तो अगर सेंटर पर निकालना है स्मॉल r 0 हो जाएगा,
and gravitational potential will be -3/2 g MsMe by 2. तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें तो इन्फिनिटी पर जीरो थी, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव होती जा रही है, तो नेगेटिव होती जा रही है और मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सरफेस पर आएंगे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव जी MsMe बाय आर, और फिर उसके अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी जब वो पूरा सेंटर पर आ जाएगी। तो where will, at which point on the earth will the magnitude of potential energy be the maximum, and what is the ratio of the potential energy at the center to the potential energy at the surface? तो स्टार्ट होती है इन्फिनिटी पे जीरो से, सरफेस पे आके 1 यूनिट और सेंटर पे आके 1.5 ऑफ द सरफेस वैल्यू, एंड सभी जगह नेगेटिव साइन पुट करना है। ओके, तो इसमें सारे टॉपिक्स हो गए। एक बचता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ 2 पार्टिकल एंड अ 3 पार्टिकल सिस्टम। अभी तो हमने सन और अर्थ सिस्टम देखा था, पर सन और अर्थ सिस्टम में सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होता था -g MsMe/r। अब हम एक जनरल सिस्टम देखेंगे जिसमें 2 पॉइंट मासेस इन्वॉल्व हैं, एक m1 है, दूसरा m2 है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है? अब मान लो हमने एक और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है m3, जिसका m1 से डिस्टेंस है r1 और m2 से डिस्टेंस है r2। तो इस 3 बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो एक टर्म तो आएगा 1 और 2 के बीच का, -g m1 m2/r12। ऐसे ही 2 और टर्म्स आ जाएंगे, तो -g m1 m3/r13 और -g m2 m3/r23। अब एक और चौथा ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें फिर 3 और टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, m1 m4 m4 m3 और m2 m4। बेसिकली सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स आ जाएंगे जिसमें 2 लोगों का पेयर हो रहा हो, ठीक है। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 मास सिस्टम। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी का और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है इन विद रिस्पेक्ट टू, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड आर, एंड एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर? दिस इज ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी ऑर्बिटल। ओके, डेरिवेशन से पहले एक थर्ड फॉर्मूला भी देख लेते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड अगर t है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, एंड
omega is also equal to v by r, so this is equal to 2 pi r divided by the orbital velocity. And orbital velocity is nothing but square root of gm by r. So time period can also be written as 2 pi r of earth divided by square root of gm by r of earth. So time period will be equal to 2 pi r of earth to the power 3 by 2 divided by square root of gm. और इन सब फॉर्मूलाज में कैपिटल एम मास ऑफ सन है, मास ऑफ अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन देखते हैं। मान लो ये सन है और ये अर्थ इसके अराउंड चक्कर काट रही है। लेट से इसका वेलोसिटी है v ऑर्बिटल। तो व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स? Mass of earth times orbital velocity square divided by distance between the earth and the sun. और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो दिस विल बी इक्वल टू g टाइम्स मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इससे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई डी, और m इज द मास ऑफ द सन बिकॉज मास ऑफ द अर्थ तो कैंसिल हो जाता है। अब वेलोसिटी आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर बाय वी नॉट, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो टाइम पीरियड का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उसमें एक और चीज़ देखनी थी कि अगर हम स्क्वायर कर दें इस फॉर्मूला को, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम टाइम्स आर ई क्यूब। सो टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ। For an orbiting object, the square of the time period is proportional to the cube of the distance between the center and the object. तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लिया, अब देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया विद सम वेलोसिटी v, then what is the minimum velocity at which if the object is launched it will never come back. So इसका मतलब जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो सरफेस पर उसका पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव जी एम एस एम ई बाई आर, और सरफेस पर उसका काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 एम वी स्क्वायर, और v की जगह हमें एस्केप वेलोसिटी निकालना है। और जब इन्फिनिटी पे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो सरफेस पर उसका टोटल एनर्जी होगा इन्फिनिटी पर भी टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर u plus k at the surface is equal to u plus k at infinity, which is zero. So we can say negative g mass of sun mass of earth by r is equal to 1/2 mass of earth times the velocity, the escape velocity square. नेगेटिव आएगा बिकॉज इनका सम जीरो होता है, सो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, और वेलोसिटी ऑफ एस्केप आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से एट अ डिस्टेंस
x फ्रॉम द सेंटर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा -g मास ऑफ सन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर। सो कितना आ रहा है x के टर्म्स में? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा, इट वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय x। सो स्क्वायर कर देंगे, सो वी विल गेट g मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय x, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हमारा g मास ऑफ सन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2x। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, so this will be the total energy. So total energy is equal to the negative of kinetic energy. अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी 100 है, -100 जूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी होगा +50 जूल्स और टोटल एनर्जी होगा -50 जूल्स। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड दोनों के डबल होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ का एक सैटेलाइट है, स्पेस स्टेशन या कोई सैटेलाइट है विद मास m एंड इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, और उस सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है -5000 जूल्स, तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और टोटल एनर्जी कितना होगा? तो हम बस देख लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता है -gms m0/x, काइनेटिक एनर्जी होता है +gm0ms/2x। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी -5000 है, काइनेटिक एनर्जी +2500 हो जाएगी, और टोटल ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, और काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक, तो कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, व्हाट विल बी योर आंसर? सो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है F इज इक्वल टू -du/dx से आती है, देयरफॉर U इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ F dx। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से जीरो पर, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फिक्स डिस्टेंस पर आते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव होती जाती है। तो अब लास्ट टॉपिक बचा है केप्लर्स लॉ, तो इसको जल्दी से ही खत्म कर देते हैं, बहुत आसान है। केप्लर के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई प्लैनेट स्टार का ऑर्बिट कर रहा है तो एक ही पॉसिबल ऑर्बिट है, वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अगर सन है और एक प्लैनेट है, या सन की जगह कोई भी स्टार है और उस स्टार का कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है, देन द ओनली पॉसिबल ऑर्बिट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सर्कल भी एक एलिप्स होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिप्टिकल है तो सर्कुलर नहीं हो सकता, सर्कुलर भी हो सकता है। एंड
it is not just a elliptical orbit but the star is at one of its foci. तो या तो राइट वाले फोकस हो सकता है स्टार में या लेफ्ट वाले फोकस पर हो सकता है स्टार. तो first law says that a planet orbits a star in an elliptical orbit with the star at one of its foci. केपलर का सेकंड लॉ होता है कि जो प्लैनेट मूव कर रहा है अबाउट द स्टार इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आता है क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और एंगुलर मोमेंटम एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड होता है. तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा. तो अगर जब ये प्लैनेट इसके पास है तो एरिया सेम होगा तो थिकनेस बड़ी होगी. पर जब ये प्लैनेट दूर होता है तो इसका थिकनेस कम हो जाता है. इसका मतलब अगर ये प्लैनेट v1 वेलोसिटी से चल रहा है व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस r1 और v2 वेलोसिटी से चल रहा है व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस r2 देन v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2. ये आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्योंकि m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2. जब सन के पास होता है प्लैनेट तब तेज चलता है या जब सन के दूर होता है तब तेज चलता है. तो जब पास होगा तो r1 छोटा होगा v1 बड़ा होगा. जब दूर होगा तो r2 बड़ा है इसलिए v2 छोटा है. तो ये था सेकंड लॉ और केपलर का थर्ड लॉ हमने पढ़ लिया है. r t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. इसका डेफिनेशन हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी से देख लिया. इसका डेरिवेशन में हमने t को 2 पाई r बाई वी नॉट लिया था और v naught was inversely proportional to r to the power 1 by 2. So this becomes 2 pi r divided by square root of gm times 3 by 2. Hence t square is proportional to r cube. तो इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको एक प्लैनेट का टाइम दिया होगा फिर दूसरे प्लैनेट का टाइम निकालना होगा और दोनों के ऑर्बिटल वेलोसिटीज दिए होंगे ऑर्बिटल डिस्टेंस दिए होंगे. तो इसको यूज करके निकाल सकते हैं. ओके तो सारा खत्म हो गया है हमारा. एक कॉन्सेप्ट आता है वेटलेसनेस का. तो अगर ये प्लैनेट हमारा सन है या ये हमारा अर्थ है और कोई सैटेलाइट सन अर्थ का ऑर्बिट कर रही है तो हमें बताना है कि कितने वेलोसिटी पर वेटलेसनेस फील होगा. तो वेटलेसनेस तब फील होगा जब उसका इफेक्टिव जी 0 हो जाएगा. इफेक्टिव जी होगा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा. तो व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब वेटलेसनेस का सिचुएशन आएगा. इसका मतलब जी एम ई एम ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर should be equal to mv square by r.